Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in this lecture, we shall study, first of all, propagation of electromagnetic waves in a conducting media, and then later on, we shall study the propagation of electromagnetic wave in non-conducting media. Let's study, first of all, propagation of electromagnetic waves in conducting media. Electromagnetic waves are three-dimensional propagation of vibration of electric fields and magnetic fields. It's mean if electric field vector if electric field vector is along x-axis, then magnetic field vector will be along y-axis and direction of propagation will be along z-axis. In similar manner, if electric field vector is along y-axis and magnetic field vector is along the z-axis, then the direction of propagation will be along x-axis. And if we take electric field vector along z-axis, magnetic field vector along x-axis, then the direction of propagation will be along y-axis. Mean electric field and magnetic fields we know are mutually perpendicular to each other, and their cross product gives us direction of propagation of the wave. Whatever the plane E and B makes, direction of propagation will be normal to it. So that is why we say that electromagnetic waves are three-dimensional. Mean direction of propagation of the electromagnetic waves may be along x-axis, may be along y-axis, and may be along z-axis. And although we know electromagnetic waves are transverse in nature because electric field and magnetic fields are perpendicular to each other, and their direction of propagation is also perpendicular to both electric field and magnetic field, and such waves are called transverse waves. Uh, Here is explained what does it mean. The vector field B vibrates along y direction, whereas the electric field vector E vibrates along x direction. The direction of the wave propagates along z direction. Thus, electromagnetic wave is a vector in nature, in addition to being transverse. Transverse होने के साथ साथ ये vector भी हैं because ये direction of the wave show करती हैं. And this results in photons being vector particle. क्योंकि फोटॉन जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में हम जानते हैं पॉइंटिंग वेक्टर के पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन भी जो है वो अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव होती है. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो फोटॉन्स होते हैं वो वेक्टर पार्टिकल्स हैं. दे शो द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. Electromagnetic waves we know are a set of different kind of radiations like gamma rays, like X-rays, ultraviolet, visible, infrared, microwaves, and radio waves. Now let's discuss Maxwell's equations. Electromagnetic wave equations or Maxwell equations in free space. In free space. Free space means which does not contain any kind of charge or current. Free space does not contain any charge particle or current. So Maxwell equations for free space or vacuum are del dot E is equal to 0. 0. Why there is 0? Because charge particle is not there. In vacuum, charge is not present. That's why del dot E is equal to 0 taken here. Although we know that del dot E is equal to rho by epsilon naught. But as you know, there is no current density. So this right hand side becomes 0. So del dot E is equal to 0, equation number 1. Del dot B is equal to 0. Yes, we know del dot B equal to 0. Third equation is del cross E is equal to minus partial B by partial T. Yes, ये ठीक है. और del cross B is equal to mu naught
एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई बाय पार्शियल टी, ये चारों इक्वेशंस हैं वैक्यूम के लिए, मैक्सवेल इक्वेशंस, इनको याद रखिएगा। फर्दर टॉपिक पढ़ने के लिए ये आपको आना ज़रूरी है। फ्री स्पेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम पहले फ्री स्पेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन ड्राइव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एंड देन मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी व पार्शियल टी का हम लेते हैं डेल से क्रॉस प्रोडक्ट या कर्ल, कर्ल ऑफ द, टेकिंग द कर्ल ऑफ इक्वेशन नंबर 3। सो आपने क्या किया, आपने डेल के साथ आपने दोनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। तो डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल डेल क्रॉस बी by partial t. Now let's see what is the vector triple product. Vector triple product, we know a vector cross b vector cross c vector. This is vector triple product, and it is equal to a vector dot c vector into b, a vector dot c vector into b vector minus a dot b into c vector minus a dot b into c. This is called vector triple product. Using this we can evaluate del cross e, this one. ये जो डेल है ये ए के इक्वल हो गया, ठीक, ये ए के इक्वल, और ये जो डेल है ये बी, और ई जो है वो हमारे पास सी के इक्वल हो गया। सो इसको यूज करते हुए हम लिख सकते हैं डेल डॉट ई इंटू डेल, या डेल शुरू में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, डेल इंटू डेल डॉट ई, या डेल डॉट ई, ये डेल और ये सी है, ठीक है, डेल डॉट ई इंटू डेल माइनस डेल डॉट डेल, ये जो ए होगा ना डेल डॉट डेल इंटू ई, तो डेल डॉट डेल सेल्फ डॉट प्रोडक्ट है तो डेल स्क्वायर के इक्वल आ गया, सी डेल स्क्वायर आ गया, डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल डेल क्रॉस बी ओवर पार्शियल टी, इसे हम इक्वेशन नंबर 5 कह लेते हैं, ठीक है। तो डेल डॉट ई किसके इक्वल था इक्वेशन नंबर 5 में, मैक्सवेल इक्वेशन में हमने इसको 0 कहा था, और डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई बाय पार्शियल टी कहा था, आपको याद होगा, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन, सेकंड और फोर्थ इक्वेशन यहाँ पे यूज करें। तो डेल डॉट ये 0 हो जाएगा, डेल डॉट ई 0 था तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, माइनस डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल डेल क्रॉस बी बाय पार्शियल टी, और ये जो डेल क्रॉस बी है इसकी वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन नंबर 4 से, और वो थी पार्शियल ई बाय पार्शियल टी, तो ए पार्शियल भी था तो पार्शियल इंटू पार्शियल ई बाय पार्शियल टी वो बन गया पार्शियल स्क्वायर ई बाय पार्शियल टी, और साथ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट भी आना, यस, ठीक है। डेल क्रॉस जो बी था ना किसके इक्वल था, डेल क्रॉस बी, फोर्थ इक्वेशन फ्री स्पेस के लिए, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई बाय पार्शियल टी,
पार्शियल ई, दिस इज पार्शियल, और करली भी हम इसको कहते हैं, पार्शियल ई बाय पार्शियल टी। ये वैल्यू जब हमने पुट की होगी तो ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हमारे पास बाहर आ गया, और ये बन गया हमारे पास पार्शियल स्क्वायर ई बाय पार्शियल टी स्क्वायर। तो माइनस, ये आप इसको इधर ले आए इस तरफ, माइनस से तो प्लस हो जाएगा, क्या बन जाएगा डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल स्क्वायर ई बाय पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गई एक वेव इक्वेशन। इसमें से देखें इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस हम इक्वेशन नंबर 7 कह लेते हैं। दिस इज फ्री स्पेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, द फ्री स्पेस मीन्स, I have told you, free space means charge free and current free space. It is essential condition for vacuum। वैक्यूम की कंडीशन होती है कि उसमें चार्ज भी नहीं होता, करंट भी नहीं होता। इस इक्वेशन को याद रखना, ये 3 डिमेंशन के लिए है, कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 3 डिमेंशन में है। तो अभी हमने इसको जर्नल लिखा है डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल स्क्वायर ई बाय पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिमिलर मैनर में फ्री स्पेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 4 का कर ले लेना, पहले 3 का लिया था ना दोनों तरफ, अब हमने 4 का कर लेना है। डेल के साथ आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल डेल क्रॉस ई बाय पार्शियल टी। अब उसी तरह यहाँ भी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पुट कर दें, कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या होता है ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। तो उसी तरह हम लिखेंगे डेल डॉट बी इंटू डेल, या डेल इंटू डेल डॉट बी माइनस डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन डेल क्रॉस पार्शियल इंटू डेल क्रॉस ई बाई पार्शियल टी। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन डेल डॉट बी यहाँ पे आ गया, ये 0 के इक्वल हो जाएगा, हम जानते हैं ये 0 होगा, तो इसको आप 0 पुट करेंगे क्योंकि सेकंड इक्वेशन में डेल डॉट बी 0 है, तो माइनस आ जाएगा डेल स्क्वायर बी इज इक्वल म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल डेल स्क्वायर ई बाय पार्शियल टी। तो इक्वेशन नंबर इसे हम 9 कह देते हैं। सो वी गेट माइनस डेल स्क्वायर बी, ठीक है ना, क्योंकि वो डेल इंटू डेल डॉट बी 0 हो गया ना, तो माइनस डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू माइनस ये म्यू नॉट एप्सिलॉन। अब जो डेल क्रॉस ई था ना, वो था पार्शियल बी बाय पार्शियल टी। डेल क्रॉस ई थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन क्या थी, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू पार्शियल बी बाय पार्शियल टी। तो हमारे पास क्या बन गया पार्शियल इंटू पार्शियल बी बाय पार्शियल टी, ये आ जाएगा डेल स्क्वायर बी बाय पार्शियल टी स्क्वायर। ये उसी तरह म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल स्क्वायर बी बाय पार्शियल टी स्क्वायर आ गया। तो इसको हम इस तरफ ले जाएंगे, माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल स्क्वायर बी माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल बी स्क्वायर बाय पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यू कैन सी दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 10। तो इस इक्वेशन में हमारे पास क्या आता है बी आता है, इसका मतलब क्या हुआ दिस इज फ्री स्पेस वेव इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। द फ्री स्पेस मीन्स चार्ज फ्री, उसी तरह से पहले कहा था चार्ज फ्री एंड करंट फ्री स्पेस, इट इज एसेंशियल कंडीशन फॉर वैक्यूम। अब हम जनरल फॉर्म में कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, ये जनरल थी ना, अब हम कंपोनेंट फॉर्म में तीनों क्वेश्चन नंबर 7 जिसको हमने कहा था फ्री स्पेस वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो फ्री स्पेस वेव इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड है, इनको अगर हम लिख सकते हैं कंपोनेंट फॉर्म में तो लिख लें। तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के तीनों कंपोनेंट एक्स वाई और जी। तो पहले एक्स कंपोनेंट लिखते हैं डेल स्क्वायर ई एक्स माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन पार्शियल स्क्वायर ई एक्स बाई पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये एक्स कंपोनेंट आ गया। वाई कंपोनेंट डेल स्क्वायर ई वाई माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल स्क्वायर ई वाई पार्शियल टी स्क्वायर आ गया इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 12 आ गया। इसी तरह जी कंपोनेंट आ जाएगा, द जी कंपोनेंट ऑफ वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड डेल स्क्वायर ई जी माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल स्क्वायर ई जी व पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 बन गई। इसी तरह तीनों कंपोनेंट जो है एक्स कंपोनेंट ऑफ इक्वेशन नंबर 10 जो इसको हमने वेव इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड कहा था डेल स्क्वायर बी एक्स माइनस म्यू नॉट पार्शियल म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट
पार्शियल स्केयर बी एक्स बाय पार्शियल टी स्केयर इक्वल टू 0, ये वाई कंपोनेंट आ जाएगा उसी तरह, और ये हमारे पास जी कंपोनेंट आ गया उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड का, वेव इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो इन जनरल वेव इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, पार्शियल स्केयर साई बाय पार्शियल एक्स स्केयर माइनस 1 बाई बी स्केयर पार्शियल स्केयर साई बाय पार्शियल, ये उसी फॉर्म की इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो इसमें जो 1 ओवर वी स्केयर है ये किसके इक्वल है, हर एक में देखें तो ये 1 ओवर वी स्केयर है, तो ये आ जाएगा 1 वी इज इक्वल टू 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर रूट। ठीक है, इसी को हमने स्पीड ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव कहा था। तो इसके अंदर 1 ओवर वी स्केयर, तो मतलब ये जो म्यू नॉट हर एक में आ रहा है ना, ये वाली चीज़ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब ये 1 ओवर वी स्केयर के इक्वल है। 1 ओवर वी स्केयर इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, या हम लिख सकते हैं वी स्केयर इज इक्वल टू 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और स्केयर रूट ले लेंगे तो वी इज इक्वल टू 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की स्केयर रूट। इसी को हमने स्पीड ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव कहा था। नो वेव इक्वेशन इन चार्ज फ्री बट नॉन कंडक्टिंग मीडिया, पहले कंडक्टिंग मीडिया में था, अब नॉन कंडक्टिंग मीडिया में। It is easy to see the form of wave equation in which they pertain to charge but non-conducting media. Electromagnetic waves properties of media है। The equation 7 takes the form, हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए मीडियम का होना या ना होना कोई मान ही नहीं रखता, वो मीडियम हो या ना हो, दे पास। तो पहले हमने कंडक्टिंग मीडिया स्टडी किया, अब नॉन कंडक्टिंग मीडिया के लिए हमारे पास क्या बन देंगी, क्वेश्चन नंबर 7 बन देगी डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू ई। ये जो म्यू और पहले म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट था, अब सिंपल म्यू ई, ये मीडिया के लिए जब मीडियम प्रेजेंट होगा, म्यू ई डेल पार्शियल स्क्वायर ई पार्शियल टी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 10 उसी तरह डेल स्क्वायर बी माइनस म्यू ई पार्शियल स्क्वायर बी पार्शियल टी स्क्वायर, ये हमारे पास है म्यू और ई परमेबिलिटी और परमिटिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ सम मीडिया, वेयर हम जानते हैं कि जो ई की वैल्यू होती है, एप्सिलॉन की वैल्यू होती है, वो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू से हमेशा ज़्यादा होती है, क्योंकि जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वैक्यूम एयर के लिए 1 होती है, बाकी तमाम मीडिया के लिए 1 से ज़्यादा होती है। इसलिए म्यू की वैल्यू और ई की जो वैल्यू होती हैं वो म्यू नॉट एप्सिलॉन की वैल्यू जो होती है वो एप्सिलॉन नॉट से ज़्यादा होती है, और म्यू की वैल्यू म्यू नॉट से ज़्यादा होती है। इससे मतलब ये हुआ कि जो v होगी वो लेस होगी c से, जो मीडियम के अंदर स्पीड होगी वो स्पीड ऑफ लाइट से लेस होगी। देयर इज अ ड्रॉप इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स एनी मीडिया फ्रॉम वैक्यूम, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज मैक्सिमम। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और बाकी तमाम मीडिया में इससे कम है, एंड ड्रॉप्स बाय ए फैक्टर ईटा नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ईटा इज इक्वल सी ओवर वी। अगर सी और वी ऊपर नीचे बराबर होंगे तो ईटा की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं ये जो वी की वैल्यू होती है ये लेस होती है। सी स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम, और वी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया। तो मीडिया में स्पीड ऑफ लाइट कम, तो अगर ये वैल्यू नीचे वाली फैक्टर की कम होगी तो ईटा की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। ईटा की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है, इसलिए हम ये बात कहते हैं कि मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो लेस होती है बनिस्बत स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर। अल्लाह हाफिज़।